In this lecture we will start your next point, that is point number second from unit number second. Okay, Z ट्रांसफॉर्म, Z ट्रांसफॉर्म क्या देखना है हमें अभी? Z ट्रांसफॉर्म. ओके, फॉर फाइंडिंग Z ट्रांसफॉर्म सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सीक्वेंस. सपोज सीक्वेंस एफ ऑफ के. सीक्वेंस आपको मालूम है सीक्वेंस क्या है? ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे एफ ऑफ के बी एनी absolutely convergent sequence. कई सीक्वेंस है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस. कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है आपको मालूम है? दिस सीक्वेंस सम ऑफ द सीरीज दिस टेंड्स टू सम फिक्स नंबर एट द टाइम वी हैव टू कॉल कन्वर्जेंट. ओके, let f of k be any sequence. Okay, this is absolutely convergent sequence. Okay, absolutely convergent sequence. Then Z transform of f of k or of sequence f of k is denoted by Z transform of f of k. This is your notation. Okay, Z transform of f of k, Z transform of f of k, and defined as Z transform of f of k, or this is called f of z. Both are same. F of z is called Z transform of f of k, or Z transform of f of k is equal to f of z is equal to integration minus infinity to plus infinity the sequence f of k into z raised to minus k. ओके, यहाँ पे z अलग है. ओके, दिस बिलोंग्स टू वेरिएबल एंड दिस बिलोंग्स टू Z transform. Okay, so this is your formula. क्या है formula? Z transform of the sequence f of k is equal to f of z is equal to integration minus infinity to plus infinity f of k z raised to minus k, f of k z raised to minus k. ओके, f of k z raised to minus k, and this sum vary from k. ओके, यहाँ पे क्या है? k का लिमिट k from minus infinity to infinity, and f of k क्या है? f of k is absolutely convergent sequence. f of k is absolutely convergent sequence. If sequence f of k is absolutely convergent, then and then we have to use this, otherwise not. ओके, तो यहाँ पे f of k पे मस्ट कंडीशन क्या है? f of k must be absolutely convergent. ओके, देन तो यहाँ पे Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k क्या है? f of z. ओके, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k क्या है? f of z. नाउ सिमिलरली वी विल डिस्कस द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म. इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म. तो क्या जाएगा? हियर देखो अभी दिस Z गोज टू दिस साइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इनवर्स. करेक्ट. तो क्या बचेगा? हियर और f of k सीक्वेंस f of k is called इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of z. देखो बोर्ड पे सब लोग, यहाँ पे क्या है? Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k is equal to f of z. Okay, f of z is called Z transform of f of k. Okay, f of z is called Z transform of f of k. Okay, then f of k is called inverse Z transform of f of z. Okay, f of k is called इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of z. ओके, तो f of k
उसका नाम क्या है एफ ऑफ के का? दिस इज इनवर्स झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड। ओके, एंड एफ ऑफ जेड का नेम क्या है? एफ ऑफ जेड का, एफ ऑफ जेड इज झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के। ओके, एफ ऑफ जेड इज झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के एंड f of k is inverse Z transform of f of Z. Okay, this is the definition of Z transform and inverse Z transform. Okay, so for studying this topic we have to require some basic results. Basic result जो हमने देखे हैं पहले भी, तो 1/1 plus x, 1/1 minus x, e raised to x. Okay, तो 1/1 plus x क्या आता है? Remarks 1/1 plus x क्या आता है? 1/1 plus x, this is 1 minus x plus x square minus x cube plus dot 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 dot. Okay, plus dot dot dot. Okay, then second result 1/1 minus x वो क्या आता है? 1 plus x square plus x cube plus dot dot dot. Correct. Now third e raised to x क्या मिलता है? e raised to x 1 plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial plus dot 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 dot. Okay, these are the infinite series. उसका नाम क्या है? infinite series. Next बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम 1 plus x bracket raised to n क्या आता है? वो 1 plus nx plus n minus 1 divided by 2 factorial x square plus dot dot dot. बायनोमियल थ्योरम. Okay, also gp ap आपको मालूम है. Suppose this is your series a plus ar square प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, तो उसकी सम क्या आती है? ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। करेक्ट, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर कब? इफ मॉड ऑफ आर लेस देन 1, मॉड ऑफ आर लेस देन 1। ओके, तो वी हैव टू यूज दिस बेसिक सीरीजेस। ओके, बेसिक कंसेप्ट इन दैट टॉपिक फॉर फाइंडिंग झेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो उसके हाँ क्या है झेड ट्रांसफॉर्म? f of z is called Z transform of f of k and f of k is called inverse Z transform of f of z. Okay, these are the basic definitions. Now we have to study or we will discuss the basic properties of Z transform. Okay, basic properties of Z transform. Properties of Z transform. Properties ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा? कैपिटल झेड ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ झेड ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिनियरिटी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियर का मीनिंग क्या है? टू फंक्शंस है, मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट, तो वी गेट सेपरेट। ओके, वी गेट सेपरेट। लेट झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एंड झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के इज इक्वल टू जी ऑफ जेड and a comma b are any constant, and a comma b are constant, then z transform of f of k plus g of k is equal to क्या मिलेगा? सेपरेट दिस with the help of linearity और with the help of this positive sign क्या जाएगा? झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के। ओके, तो क्या मिलेगा? वो क्या जाएगा? दिस इज झेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के का क्या जाएगा? एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ के का जी ऑफ जेड। ओके, दिस इज कॉल्ड लिनियरिटी प्रॉपर्टी। और उसे हमने ए से मल्टीप्लाई किया, उसे बी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? ये, यहाँ पे क्या आने वाला है? बी। कब? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है तब। ओके, और
this same we have write for A and B, Z transform of f of k plus b into g of k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए टाइम्स एफ ऑफ जेड प्लस बी टाइम्स जी ऑफ जेड. ओके, दिस इज कॉल्ड लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी आएगी फॉर इनवर्स. यहाँ पे क्या जाएगा, इनवर्स, दिस गोज टू दिस साइड, दिस गोज टू दिस साइड. ओके, फॉर इनवर्स वी हैव टू यूज सेम रिजल्ट. ओके, इनवर्स जेड आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है हम लिखेंगे. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी सेकंड scale of change or change of scale property. This is very very important. Change of scale property. Okay, तो देखो, let, this is common statement to all, let z transform of f of k is equal to f of z. ये तो कॉमन ही आने वाला है. let z transform of f of k is equal to f of z, then z transform of, then the z transform of a raised to k into f of k, a raised to k into f of k, a raised to k into f of k. क्या किया है यहाँ पे, सीक्वेंस को a raised to k से मल्टीप्लाई किया है. तो चेंज क्या होता है, देखो, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k is f of z, then z ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k into f of k, a raised to k into f of k, this is f of z by a, f of z divided by a. ओके, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय ये. तो सपोज आपके पास ये दिया है, सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन, तो फर्स्ट सेलेक्ट एफ ऑफ के, देन फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, वी गेट एफ ऑफ जेड. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के. तो उसका आंसर क्या जाएगा, जो भी आपके पास एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड, उसमें जेड इज रिप्लेस्ड बाय जेड बाई ए, जेड इज रिप्लेस्ड बाय जेड बाई ए. दिस इज change of scale property. Then next property number third, this also belongs to change of scale. if z transform of, यहाँ पे सेम रहेगा, let z transform of f of k is equal to f of z, then z transform of, z transform of e raised to minus k into f of k. चेंज ऑफ स्केल में सेकंड, लेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k is equal to f of z, then z ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to minus k into f of k, e raised to minus k, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, e raised to minus k f of k. तो वो क्या मिलता है, f of e raised to a z. तो आंसर क्या जाएगा, f of e raised to a z. तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k, क्या है आपके पास f of z, देन वी विल राइट डायरेक्टली z ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to a k into f of k. हाउ टू राइट, तो यहाँ पे क्या है z, अभी z की जगह क्या लिखना है, z की जगह e raised to a into z, e raised to a into z. ओके, दिस इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म, shifting property. If shifting property
शिफ्ट, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या जाएगा जेड प्लस ए और जेड प्लस एन। इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ जेड, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस एन, एफ ऑफ के प्लस एन। यहाँ पे क्या था के, यहाँ पे क्या है के प्लस एन, शिफ्ट किया है, क्या है शिफ्ट, तो क्या आता है दिस इज जेड रेस टू एन इंटू एफ ऑफ जेड। ओके, उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, जेड रेस टू एन से मल्टीप्लाई बाय जेड रेस टू एन, मल्टीप्लाई बाय जेड रेस टू एन। ओके, मल्टीप्लाई बाय जेड रेस टू एन, तो क्या जाएगा जेड रेस टू एन इंटू एफ ऑफ जेड, जेड इंटू एन इंटू एफ ऑफ जेड। ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा जेड रेस टू माइनस एन, हियर इज माइनस, तो क्या जाएगा जेड रेस टू माइनस एन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन बाय के, मल्टीप्लीकेशन बाय के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाय के, ओके, मल्टीप्लीकेशन बाय के। तो देखो इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई किया है के इंटू एफ ऑफ के, के इंटू एफ ऑफ के, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफाई एफ ऑफ के, उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालो, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू एफ ऑफ के, क्या आता है माइनस जेड डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड। मल्टीप्लीकेशन बोल दिया तो क्या आता है डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन बोल दिया तो क्या आता है डिफरेंशिएशन, माइनस जेड डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड। किसका डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ जेड का। ओके, एफ ऑफ जेड का। अभी देखो सपोज के रेस टू एन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय के रेस टू एन, मल्टीप्लाई बाय के रेस टू एन, सपोज जेड के रेस टू एन से मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ के, तब क्या मिलेगा माइनस जेड डी बाई डी जेड, उसका पावर क्या जाएगा एन, उसका पावर एन, दिस इज जेड, हाँ दिस इज जेड, यहाँ पे क्या बचेगा एफ ऑफ जेड एज इट इज, एफ ऑफ जेड। कब के रेस टू एन से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई बाय के रेस टू एन वी गेट दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन बाय के, मल्टीप्लीकेशन बाय के। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिविजन बाय के, डिविजन बाय के, वहां पे भी सेम, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, देन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के डिवाइड बाय के, एफ ऑफ के डिवाइड बाय के, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के डिवाइड बाय के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। जब डिवीजन आता है तब क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन माइनस अप टू जेड इनवर्स एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, और यहाँ पे 1 बाई जेड भी लिख दिया तो भी चलेगा। दिस इज डिवीजन बाई के। ओके, एफ ऑफ के का फर्स्ट फाइंड कर दो, देन डिवाइड कर दो, वी गेट दिस माइनस इंटीग्रेशन अप टू जेड इनवर्स एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके, जेड इनवर्स एफ ऑफ जेड डी जेड। देन बाकी सब रिजल्ट है फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। इतने ही हमने प्रॉपर्टीज देखे। कितने प्रॉपर्टी देखे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, देन चेंज ऑफ स्केल, उसमें 2 टाइप्स। ओके, देन आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन बाय के एंड डिवीजन बाय के, दिस प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट। बाकी जो प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वो कोई काम की नहीं है। ओके।